حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ نامپلی نمائش 14 اپریل تک جاری رہے گی۔ نمائش سوسائٹی نے نمائش میں توسیع کا کیا فیصلہ۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل کی رفتار میں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کے اضافے کی منظوری کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے تمام میٹرو ریل کی رفتار کو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ صدر و ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے تلنگانہ کے کاماریڈی اسمبلی حلقے سے مقابلہ کرنے کی خواہش۔ وزیر ٹرانسپورٹ پووڈا اجے کمار نے پیر کے روز دھان کی خریداری کے معاملے پر مرکز کے خلاف اپنے حامیوں کو دی تربیت۔ کھمم میں رگھونادھا پالم کے قریب منجوگنڈا قومی شاہراہ پر منعقدہ احتجاج میں کی شرکت۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے TRS پارٹی قائدین، کارکنوں اور کسانوں کے ساتھ پیر کو دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکزی حکومت کے خلاف رنگا ریڈی میں دیا دھرنا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 3 روزہ دورے پر دہلی، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ شوبھا راؤ اور خاندان کے دیگر افراد بھی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ KCR اور اہلیہ کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر شدید گرمی کے بعد ریاست میں اچانک ہلکی بارش کا امکان۔ تلنگانہ میں آئندہ 2 دن میں بارش کا امکان۔ حیدرآباد کے ساتھ کئی مقامات پر موسم تبدیل۔ تلنگانہ کے وزیر IT و انڈسٹریز KT راما راؤ نے پڑوسی ریاست کرناٹک میں حجاب اور حلال کے مسئلے پر جاری تنازع پر تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس کے PCC صدر شیوا کمار سے کہا، ہمیں انفراسٹرکچر کے فروغ، IT اور BT کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے، حجاب اور حلال کے مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے بھارت بائیوٹیک کی کووڈ ویکسین کوویکسین کی سپلائی معطل کر دی تاکہ مینوفیکچرر کو سہولیات کو اپ گریڈ کرنے اور پچھلے مہینے ایک معائنے کے دوران پائی جانے والی کمیوں کو دور کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ، بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ نمائش 14 اپریل تک جاری رہے گی۔ نمائش سوسائٹی نے نمائش میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، تاہم 9 اور 10 اپریل ہفتہ اور اتوار کو رام نومی کے پیش نظر 2 دن نمائش کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمائش کے اوقات حسب سابق 4 بجے شام سے رات 11 بجے تک رہیں گے۔ واضح رہے کہ نمائش سوسائٹی پر تاجرین اور اسٹال مالکین کی جانب سے توسیع کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں نقصانات کا سامنا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سوسائٹی نے نمائش میں 14 اپریل تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل کی رفتار میں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کے اضافے کی منظوری کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے تمام میٹرو ریل کی رفتار کو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دیا گیا۔ میٹرو ریل کی رفتار کو منظوری دینے والے ادارے کمشنر آف میٹرو ریل سیفٹی کی جانب سے حیدرآباد میٹرو ریل کو 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلانے کی اجازت حاصل تھی، جبکہ مکمل رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، لیکن 2 یوم قبل کمشنر میٹرو ریل سیفٹی نے حیدرآباد میٹرو ریل کے
सिग्नलिंग निज़ाम के अलावा दीगर उमूर का जायजा लेने के बाद अथॉरिटी को रफ्तार में इजाजत देने का फैसला किया। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मेट्रो रेल राहदारियों पर सिग्नल्स और मोड़ व स्टेशन के फासलों का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि हैदराबाद मेट्रो रेल को इसकी मुकम्मल रफ्तार यानी 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी दी जाए। अहदेदारों ने बताया कि मेट्रो रेल की रफ्तार में इजाफे का फायदा न सिर्फ मुसाफिरीन को होगा बल्कि मेट्रो रेल को भी इसका फायदा होगा। इसलिए इजाजत मिलने के साथ ही अंदरून 2 यौम हैदराबाद मेट्रो रेल अथॉरिटी की जानिब से रफ्तार में इजाफे का फैसला किया गया और 3 अप्रैल से ही तमाम राहदारियों पर चलाई जाने वाली मेट्रो की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर व हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के कामारेड्डी असम्बली हल्के से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कांग्रेस हल्कों में हलचल मचा दी। जहां उनकी ख्वाहिश जाहिर होने के बाद कामारेड्डी हल्के के कई कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने शदीद बरहमी जाहिर की और अजहरुद्दीन के इस सनसनीखेज बयान को पार्टी कायदीन को 2 ग्रुपों में तकसीम करने का इल्जाम लगाया है। मुकामी कांग्रेस कायदीन और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हामियों ने कहा कि इस हल्के से 3 मरतबा नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद अली शब्बीर ही मौजू उम्मीदवार होंगे, जो अपनी शिकस्त के बावजूद गुज़िश्ता 8 साल से कामारेड्डी हल्के के अवाम के दुख दर्द और खुशी में शरीक होते हैं। इलेक्शन हुए तो मैंने काफ़ी कैंपेनिंग की और मुझे मौका मिला कि इंडिया के हिंदुस्तान के एकदम बहुत से गरीब से और अमीर से तबके में भी मुझे जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने का मौका मिला कैंपेनिंग का। तो मुझे एक्चुअली पता है लोग का कैसे रहते हैं, क्या है, उनको कैसे आगे बढ़ाना और कैसे उनको हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छी होना चाहिए और पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। कुछ है नहीं, जो भी अच्छा काम करे, अपने परसों भी राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल कहा है कि जो अच्छा काम करेगा उनको ही आगे बढ़ावा देगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह चुका है जो अच्छा काम करे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने पीर के रोज धान की खरीदारी के मामले पर मरकज के खिलाफ अपने हामियों को तरबियत दी। खम्मम में रघुनाथा पालम के करीब मंचुकुंडा कौमी शायरा पर मुनक़िदा एक एहतजाज के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए पोवड़ा ने कहा है कि रियासत में धान की खरीदारी पर किसानों को गुमराह किया जा रहा। उन्होंने टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर के रामाराव की कॉल के मुताबिक एहतजाज में हिस्सा लिया ताकि रियासत से धान की खरीदारी से इनकार पर मरकज में बीजेपी को घेरे में लिया जा सके। पोवड़ा अजय कुमार ने कहा है कि मरकज तेलंगाना हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से दबाने की कोशिश कर रही। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज जिसने पहले बॉइल्ड राइस खरीदे थे अब खरीदारी पर अपना मौक़िफ़ वापस ले रहे। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनों और किसानों के साथ पीर को धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ रंगारेड्डी में धरना दिया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि मरकजी वज़ारत खुराक के रहनुमा खतूत के मुताबिक मरकज को रियासत के किसानों से धान खरीदना है। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो रियासत से धान खरीदे। उन्होंने कहा कि मरकज इसी मामले पर रियासत में किसानों को बेवकूफ बना रहा। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों से यासंगी के महीने में धान की पैदावार न करने को कहा था, क्योंकि वो रियासत के तई मरकज की जानिबदारी से वाकिफ थे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में बीजेपी लीडरों ने किसानों को धान पैदा करने पर उकसाया और उन्हें यकीन दिलाया कि मरकज उसे खरीदेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब बीजेपी लीडर इस मामले पर खामोश है। हाल ही में तेलंगाना के IT वजीर के रामाराव ने धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। केटिया ने कहा था कि रियासत और मरकज में बीजेपी कायदीन रियासत के किसानों को उलझा रहे। उन्होंने कहा है कि एक तरफ मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी कहते हैं कि मरकज धान खरीदेगा और दूसरी तरफ मरकजी वजीर पीयूष गोयल कहते हैं कि मरकज किसानों से सिर्फ कच्चा चावल खरीदेगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से धान खरीदने की जिम्मेदारी मरकज की है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया शोभा राव और खानदान के दीगर अफराद भी हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि केसीआर और अहलिया का तिब्बी मुआयना किया जा रहा और वो 2 दिन तक निगरानी में रहेंगे। बाद में केसीआर के मरकजी वज़रा से रियासत से मुतल्लिक़ मसाइल जैसे धान की खरीदारी, SC की दर्जेबंदी और ST रिजर्वेशन में इजाफे का मुतालबा करने का इम्कान है।
تلنگانہ بھون کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقرری کے لیے پی ایم او سے درخواست کی ہے۔ اگر وزیر اعظم کی تقرری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو سی ایم KCR مودی کو ریاست سے متعلق زر التوا مسائل سے آگاہ کریں گے اور ان سے اناج کی خریداری میں کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک قومی خریداری کی پالیسی متعارف کرانے کی درخواست کریں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر حلقے شمس آباد میں کانگریس پارٹی کی جانب سے مرکزی حکومت کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کے لیے مودی کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی کانگریس SC سیل کے نائب چیئرمین جلاپلی نریندر، میونسپلٹی کے صدر سنجے یادو، منڈل کے صدر شیکھر یادو اور دیگر بھی موجود تھے۔ بی جے پی మోడీ పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు వెంటనే ఆయన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు। 2 పూటల బుక్కిన అన్నం వండుకొని పరిస్థితుల్లో నేడు ప్రధానికం ఉన్నది। దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా వ్యతిరేకిస్తున్నది। అరే మోడీ, ఇంత ఘోర పరిస్థితి ఉన్న ప్రజల కష్టాలు నీకు కనబడతలేదా? ఒక దళిద్రమైన పాలన, ఒక దళిద్రుడు, ఒక అసమర్థుడు ప్రధానమంత్రి అయితే ఎట్లుంటుందో ఇప్పుడు దేశ ప్రజలు చూస్తున్నారు। అలాగే అక్కడ మోదీ, ఇక్కడ KCR, ఆయన రేట్లు పెంచిన ఈయన ధర్నా చేస్తాడు, ఈయన పెంచిన ఆయన ధర్నా చేస్తాడు। ఇద్దరు దొంగలు, తోడు దొంగలు అధికార పార్టీలో ఉండి ధర్నా చేయడం మనం 2002లో చూస్తున్నాము। ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు లేదు। నీకు అధికారం ఉన్నది, ఒక సీఎం హోదాలో ఉండి ఒక ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడే స్థాయి లేదు। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की सप्लाई मुअत्तल कर दी ताकि मैन्युफैक्चरर को सहूलियात को अपग्रेड करने और पिछले महीने एक मुआयने के दौरान पाई जाने वाली कमियों को दूर करने की इजाजत दी जा सके। WHO की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ये मुअत्तली 14 ता 22 मार्च 2022 के दरमियान मुनक्किद होने वाले हंगामी इस्तेमाल की इजाजत के मुआयने के बाद के नताइज के जवाब में थी और हाल ही में शनाख्तशुदा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हल करने के लिए अमल और सहूलत को अपग्रेड करने की जरूरत थी। अगरचे कोवैक्सीन की फराहमी में रुकावट होगी, लेकिन आज तक के खतरे की तशखीस खतरे से फायदे के तनासुब में तब्दीली की निशानदही नहीं करती है। WHO ने कहा है कि दस्तियाब आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि वैक्सीन मौसर है और हिफाजती खदशात मौजूद नहीं। एक बयान में भारत बायोटेक ने कहा है कि वो सहूलत में बेहतरी और अपग्रेड को नाफिज करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोवैक्सीन की पैदावार तमाम आलमी रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करती है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट एक बार फिर जनूबी हिंद की मारूफ हिदायतकार SS राजामौली के साथ काम करती नजर आ सकती हैं। आलिया भट्ट ने SS राजामौली की हिदायतकारी में बनी फिल्म RRR में काम किया है। ख्याल है कि आलिया भट्ट ने अपनी अगली फिल्म के लिए SS राजामौली से हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि आलिया इस फिल्म में महेशा बाबू से रोमांस करती नजर आएंगी। ये जानकारी जनूबी हिंद के फिल्मी निकात और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के रुकन उमेर सिंधु
खातून ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। आमिर के ट्विटर के मुताबिक ये कंफर्म जानकारी है कि आलिया भट्ट और एस राजामौली अगली फिल्म में महेश बाबू के साथ काम करते नजर आएंगे। चीन के कई इलाकों से तकरीबन 10,000 तिब्बी कारकुन हालिया दिनों में शंघाई पहुंचे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में मदद की जा सके। दरअसल शहर में इन्फेक्शन बढ़ रहा, सेहत के हुकाम ने ये इतला दी है और रिपोर्ट में बताया गया है कि तियानजिन और होबई, जियांग्शी और शेडोंग सूबों समेत कई इलाकों से हजारों तबीब 10 तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए मेगा सिटी पहुंचे हैं। तियानजिन के जन्नान जिले से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल टीम के हाउ शिवान ने कहा है कि हमारी टीम के तमाम 30 अरकान ने रजाकाराना तौर पर काम किया, जिनमें से बहुत से लोगों ने होबाई में कोरोना वबा के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। शंघाई म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कुछ तिब्बी टीमें पहले ही आरजी अस्पतालों में काम कर रही हैं जो हल्के केसेस और अलामात के बगैर लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। सूबा एनओई के 650 से ज्यादा डॉक्टर्स मुकामी तिब्बी टीम के साथ जिले चोंगमंग के एक आरजी अस्पताल में काम कर रहे, जिसमें 2700 से ज्यादा मरीजों के बिस्तर लगे हुए हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. नामपली नुमाइश 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी ने नुमाइश में तोसी का किया फैसला। हैदराबाद में मेट्रो रेल की रफ्तार में 10 किलोमीटर फी घंटे के इजाफे की मंजूरी के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से तमाम मेट्रो रेल की रफ्तार को 80 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर वो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के कामारेड्डी असेंबली हलके से मुकाबला करने की ख्वाहिश। वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने पीर के रोज धान की खरीदारी के मामले पर मरकज के खिलाफ अपने हामियों को दी तरबियत। खम्मम में रघुनाथा पालम के करीब मंजुगुंडा कौमी शहरा पर मुनक्किदा एहतजाज में की शिरकत। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनों और किसानों के साथ पीर को धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ रंगारेड्डी में दिया धरना। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दौरे पर दिल्ली, उनके साथ उनकी अहलिया शोभा राव और खानदान के दीगर अफराद भी। सरकारी जराये ने बताया कि केसीआर और अहलिया का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। तेलंगाना के कई मुकामात पर शदीद गर्मी के बाद रियासत में अचानक हल्की बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के साथ कई मुकामात पर मौसम तब्दील। तेलंगाना के वज़ीर आईटी व इंडस्ट्रीज केटी रामाराव ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के पीसीसी सदर शिवा कुमार से कहा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग, आईटी और बीटी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। हिजाब और हलाल के मसले पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन की सप्लाई मुअत्तल कर दी ताकि मैन्युफैक्चरर को सहूलियात को अपग्रेड करने और पिछले महीने 1 महीने के दौरान पाई जाने वाली कमियों को दूर करने की इजाजत दी जा सके। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।